moment. हम यही बोलते रहेंगे कि वहाँ पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया। उनको ये समझना चाहिए कि न तो ये हैदराबाद है और न 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश है। जिस ढांचे को बार बार बाबरी मस्जिद कहते हैं, राम मंदिर थी, राम मंदिर है, राम मंदिर ही है। We're counting down to the Uttar Pradesh elections, ladies and gentlemen. There are many who are trying to move in, and of course, caste and community lines, and of course, trying to look at the political opportunity. But somewhere, somehow, despite the Honorable Supreme Court settling the issue on Ram Janmabhoomi, Mandir is back in focus. Different parties, different strokes, different angles, but they all are once again using Ayodhya as the fulcrum. Let's try and look at why and which are the parties and who's saying what. Let's start with Asaduddin Owaisi's AIMIM. It's an opportunity to unite Muslim voters in 143 seats. The last time they couldn't make a big dent in Uttar Pradesh. They're very buoyed with their successes in Bihar and the kind of traction they've been getting. Will they be able to convert that? Because so far Uttar Pradesh has not opened its arms and welcome them. They will look to hurt non-BJP parties not raising the Mandir issue. And for the BJP, issue is central to consolidating the Hindu vote. It's a promise that they have made, and they're trying to actually speed up the construction of the Mandir so that there is perhaps an influence that will happen where the Hindu vote will come together rather than being broken down on the caste lines. They will all unite for Ram. Will stress on fulfillment of an age-old promise. Unites the BJP's OBC outreach too. Becomes very critical for their plans. The Samajwadi Party is keen to ride onto this resurgent Hindutva pole wagon. It could also antagonize pro-Mandir section of the core Yadav vote bank. And they also believe that there are a few within the core BJP vote bank which are feeling a little alienated. They would want to draw them towards them. BSP is fearing losing the non-Jatav Hindu voters. They also wooed the Brahmin community very strongly in the past. So they will also try and use the Mandir once again. Voters fears, Congress fears getting stuck with the anti-Hindu tag. Chunavi Hindu is something which they've been branded in the past. They will look to project Rajiv Gandhi as the original architect of the Mandir movement because he started his Chunav Abhiyan at that time from the Congress had started and mounted its national campaign still from Faizabad. They didn't call it Ayodhya then. It's Ayodhya now, but Owaisi wants to call it Faizabad. It's Ram Janmabhoomi and Ram Mandir now, but Asaduddin Owaisi still wants to call it Babri Masjid because he believes अगर वहां ढांचा होता यानी मस्जिद होती तो कोर्ट का फैसला कुछ और होता. Let's dive into the debate, ladies and gentlemen. Mandir back in focus is the question. In the run-up to the UP polls, our guest this evening, Syed Asim Waqar, national spokesperson of the AIMIM, Anila Singh, spokesperson of the BJP, Dharmveer Chaudhary, spokesperson of the BSP, and Karthik Chopra of the Nirmohi Akhada. First up, namaste to all of you. Good to see you all. आसिम वकार साहब, बड़े दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है, खैरियत है, सब ठीक है? पर तो फिर एक बात बताइए, ये अभी अचानक मंदिर का राम क्यों अलाप रहे हैं ओवैसी साहब, और इतना ही प्यार है तो अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर क्यों है राम जन्मभूमि से? आज अयोध्या में क्यों नहीं, राम जन्मभूमि के वहां क्यों नहीं? नहीं, आप उसको जो भी दिल चाहे कहें, लेकिन हमारी इस्लाम में
ये मान्यता है कि जहां एक बार मस्जिद बन गई वो कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। और अभी मैं सुन रहा था आपको कि आपने कहा कि ओवैसी साहब कहते हैं कि अगर वहां पर मस्जिद शहीद ना की गई होती तो फैसला कुछ और होता। आप समझिए सर, न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने साफ तौर से ये लिखा है अपने फैसले में कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि 1200 ईस्वी से और सन 1528 ईस्वी तक उस जमीन के ऊपर कोई मंदिर या महल का निर्माण था। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया। उन्होंने कहा कि निर्मोही अखाड़ा और राम मंदिर न्यास समिति इस बात का कोई सबूत ही नहीं दे पाए कि वहां कोई मंदिर था। उन्होंने कहा कि जमीन के अंदर से जो तथ्य निकालकर पेश किए गए दैट वाज नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मंदिर था। अब नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर में तो सर 2-3 धर्म और आते हैं। पर जिस इस्लाम का आपने हवाला दिया आज़म बकार साहब, जो नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिस इस्लाम का आपने हवाला दिया ये कहकर कि एक बार जहां मस्जिद बन गई वो कयामत तक मस्जिद है, वही इस्लाम ये भी कहता है कि किसी और के देरासर में आप अपनी मस्जिद नहीं खड़ी कर सकते। किसी और के मंदिर पर, किसी और के किसी और के मंदिर पर आप अपनी मस्जिद खड़ी नहीं कर सकते। वो मस्जिद हो ही नहीं सकती। अब अगर आप वो कहें कि वो मंदिर नहीं था, बौद्ध धर्म का कोई या था या कुछ और भी था, पर आपने तो किसी धर्म के किसी देरासर को तोड़ के अपनी मस्जिद बनाई है। ये तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। सर बात तो सुनिए, आपने तो कंटेम्प्ट कर दिया। हाँ? आप पर तो केस होना चाहिए। मेरे पे क्यों केस होना चाहिए? उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वहां एक नॉन इस्लाम, इस बात का कोई सबूत मैं तो ये कह रहा हूं कि वहां एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था। आप ये मानते हैं? अगर एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था, आप कह रहे हैं, आप ही ने कहा कि वो कोई बौद्ध धर्म का किसी और धर्म का ये हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं इस्लाम कहता है किसी और धर्म के इस पर आप स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते। आज आप खुद देखिए, काशी में जाएंगे तो ज्ञानवापी किसके ऊपर खड़ा है, तो फिर आपके इस्लाम के तौर पे तो वो भी गैर कानूनी हुआ। अब आप फंस गए। आपको भी ये कहना चाहिए। तो सर अब आप फंस गए। तो अगर आप ज्ञानवापी जाएंगे तो वहां तो मंदिर दिख ही रहा है। ज्योतिर्लिंग तो वही है जिसके ऊपर मस्जिद खड़ी है। तभी आप बचेंगे। नहीं, मैं कोई नहीं बच रहा हूं। कार्तिक चोपड़ा भी है निर्मोही अखाड़ा के। कार्तिक चोपड़ा कोर्ट क्या कहता है? प्लीज टेल सैयद आसिम वकार। See, they are also bringing it up at this point. It's politically convenient for them. It is absolutely convenient for them. It is convenient for them to try and wake up Hindu-Muslim sentiments. It is convenient for Aam Aadmi Party to do it. It is convenient for all these opposition political parties who were all against the construction of the Sri Ram Janmabhoomi Mandir. We at the Nirmohi Akhada fought for over 492 years. We may not be absolutely happy with the judgment where our Shariat rights were not upheld, but we are very happy that the Supreme Court acknowledged the fact that we had a historic role and representation on the site, and therefore asked that we should be given a role and representation of the new trust. Right now, the country has to rally together. There are too many external forces around which are not in the interest of India. This is the last time for any political party to start raking up issues on Hindu and Muslim. And Mr. Owaisi has no business absolutely to make any comment on the judgment of the Honorable Supreme Court. If he had something to say, he should have filed a review petition. Did he file? No. Was he a party? No. We filed a review petition. We were not very happy with all the result of the judgment, but we always fought for a temple, and there was always a temple here. No. The Nirmohi Akhada has been praying at this site from the time of Jagat Guru Ramanandacharya ji, and the foundation of all the akhadas. The Nirmohi, Nirvani, Digambari, and 10 other akhadas. See, the point is, let's come back to the judgment. They are opening certain passages of the judgment which is convenient to them. The same judgment that he quoted and the same tenets of Islam that Syed Asim Waqar quoted. Like I said, why were they not speaking since 2019? Were they silent since 2019? No. Now when UP elections are coming, are they opening their mouths? See, that is opportunism, but that's also not fact-based opportunism, because the very same court's judgment also says that the construction, the way the erstwhile structure was constructed was also not as per the generic methods of a way a mosque is constructed, because inside a mosque you don't find a Sita Rasoi and a Ram Chabutra.
So that is also mentioned in that. That in is 1982 we were praying inside in the outer courtyard. We were there till 1982. Why do they keep talking about 1949? I'm just saying the very And foundation, if we are conducting religious ceremonies there- Karthik Chopra, I'm just saying that the very foundation, the very grounds on which they are giving explanations, be it tenets of Islam or be it the court's judgment, they are quoting certain passages which are politically convenient. But let me go across to Dharamveer Chaudhary and also bring in Asim साहब. मैं आ रहा हूँ, वकार साहब आ रहा हूँ, क्योंकि अनिला जी और धर्मवीर चौधरी जी भी हैं, तो उनके भी राय जानने, तो फिर वापस आता हूँ. एक लाइन हाँ, तो एक लाइन आप बोलिएगा बस. हाँ बोल लेने दीजिए. निर्मोही अखाड़े से एक सवाल करना है. बोलिए जनाब. निर्मोही अखाड़े के प्रवक्ता जी, आप इतना नाराज मत होइए. आप आसिम वकार से क्यों नाराज हो रहे हैं? ये गुस्सा दिखाना तो सुप्रीम कोर्ट में दिखाइए जाकर, जिन्होंने ये कह दिया कि यू हैव नथिंग, यू डोंट हैव एनी संविधान के तहत बट करते हैं. फिर आप कन्वीनियंटली उन्होंने तो आपके वजूद से इनकार कर दिया. फिर आप कन्वीनियंटली यही बात कह रहे हैं. उच्चतम न्यायालय ने तो कह दिया कि निर्मोही अखाड़े के पास कोई प्रूफ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं ये. जनता में जाके आप उस पे गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा चलिए इसको जरा कार्तिक चोपड़ा और सैयद आसिम वकार. लेट मी आस्क धर्मवीर चौधरी. मुझे गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा एक मिनट. ये गुस्सा दिखाना था आपको मैं सुप्रीम जरा कोर्ट में. धर्मवीर चौधरी जी से पूछता हूँ. धर्मवीर चौधरी जी से पूछना चाहता हूं. अच्छा रुकिए आसिम वकार साहब, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने जब ट्रस्ट बनाने की बात की तो सिर्फ निर्मोही अखाड़ा का नाम लिया और कहा कि उनका किसी एक मेंबर का ट्रस्ट में शामिल होना अनिवार्य है. तो आप जो है ना, हर चीज को एक पन्ना जो आपके कन्वीनियंट है उसके हिसाब से बोलिएगा. मैं तो पूरी बात कह रहा हूं. अब धर्मवीर चौधरी जी, ये जो कोशिश है असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM की, ये क्या कामयाब होगी? क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये देखकर मंदिर और मस्जिद के चक्कर में फिर पड़ेगा? आनंद जी, रामायण की चौपाइयां हैं, जाकी रही भावना जैसी तिह मूरत देखी तिन तैसी. तो जो भगवान राम ने एक समस्या स्थापित की थी समाज में, जरा इनको आप चुप कराइए. जरा बोल रहे हैं आसिम वकार साहब, जरा नहीं अल्प विराम दीजिए. धर्मवीर चौधरी जी को बोलने दीजिए. और आसिम वकार साहब, अगर आपको OBC और ब्राह्मणों की इतनी चिंता है तो अपनी पार्टी में किसी ब्राह्मण को शुमार करके दिखाइए. AIMIM में एक भी हिंदू नहीं है अभी तक. तो चलिए धर्मवीर चौधरी जी बोलिए. देखिए, ये जो ओवैसी साहब हैं, इनको ये पता नहीं है कि ये भगवान कृष्ण, राम, गौतम बुद्ध, कबीर की धरती है. यहाँ पर सद्भाव पैदा किया जाता है. यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिल बांट करके रहते हैं. ये सदियों की परंपरा है. और भला हो बाबा साहब के संविधान का, जो उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी व्यवस्था भगवान राम के मंदिर को बनाने का मार्ग प्रशस्त किया. और ये जो राजनीतिक गिद्ध हैं, इनके ऊपर खतरा मंडराने लगा. तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये गिद्ध उन्हीं चीजों को ऊपर मंडराएंगे. क्योंकि इनको वही रोटी सेकनी है. इनको हिंदू मुस्लिम की बात करनी है, चाहे वो BJP हो, RSS हो, ओवैसी साहब हो. ये एक दूसरे के पूरक हैं और ये भगवान राम को मानने वाले नहीं है. ना मंदिर में इनका कोई इंटरेस्ट है, ना मस्जिद में कोई इनका इंटरेस्ट है. ये राजनीतिक रोटियां सेक करके अपनी जमीन बनाना चाहते हैं. बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में फेल हो चुकी है. भारत सरकार, डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है. ये तो संविधान ने एक मार्ग प्रशस्त, ब्रह्मा विष्णु महेश, हाथी नहीं श्री गणेश, तिलक टोपी और तलवार, ये सब किसी के उसी पार्टी के स्लोगन्स हैं जिनसे आप जुड़े हैं और आप दूसरों को कह रहे हैं कि सांप्रदायिक गिद्ध हैं. अच्छा अनिला सिंह जी बताइए. आनंद जी, अगर आपके पास में कोई अधिकाधिक रिकॉर्ड हो इस तरीके के बयानों का, हमारी पार्टी के किसी नेता ने दिया हो, तो मेरा चैलेंज है आपको, आप दिखाइए अपने टीवी स्क्रीन पर कि किसी नेता ने स्टेटमेंट दिया हो. ये जो मनुवादी मीडिया है, ये तो आपके चुनावी स्लोगन थे जो मुझे कुछ याद है 90-2000 के जो दशक के 2000 में जब आपने परिवर्तन किया था. अनिला जी बताइए. आनंद जी, तो आप दिखाइए टीवी स्क्रीन पर, मेरा चैलेंज है आपको. देखिए, ऐसा है कि आज बात हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की, 6 फुट लंबी दाढ़ी वाली लैला की, जो अपने आप को लैला कहलाना पसंद करते हैं. उनके अब्बा जान ने नाम जरूर उनका कुछ और रख दिया, परंतु वो चाहते हैं कि दुनिया उनको लैला के नाम से जाने. तो जब हमने फैजाबाद
का पुराना नाम अयोध्या रख दिया तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो गई और वो चैलेंज करने लग गए, कहने लगे हम यहाँ आएंगे, अपने मुसलमानों को जिताएंगे। भूल गए कहाँ है, हिंदुस्तान में है ना, हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं क्या? इनको समझ लेना चाहिए, भारत माँ की आन शान पर मरने वाले हम हिंदू हैं, धर्म हेतु प्राण विसर्जन करने वाले हम हिंदू हैं, हंस हंसकर अंगारों पर पग रखने वाले हम हिंदू हैं। साहब, चाहे आप रहे हो चाहे अंग्रेज रहे हो, ठीक है, 1000 साल से ऊपर हमारे ऊपर आप लोगों ने शासन किया, पूरी सत्ता करी, पर हम नहीं मिटे। तो सीधी सी बात है ना, इन्हीं की भाषा में अगर मैं कहूँ तो कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो सीधी सी बात है, हिंदुओं के पीछे तो बहुत लोग पड़े हुए हैं, ना हमारी हस्ती मिटी ना मिटेगी। अयोध्या था, आपने फैजाबाद किया, हमने अयोध्या कर दिया। तो ये जो 6 फुट वाली लैला है, उनको समझ में आ जाना चाहिए कि लैला को भी हिंदू मान लीजिए, इनके हक अधिकार दे दीजिए इनको। जी, मैं बहन जी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मंदिर के निर्माण में कितने दलितों को आपने बैठाया था? राम मंदिर के निर्माण के उद्घाटन में कितने दलितों को बिठाया था आपने? अच्छा धर्मवीर जी, उनको अपनी बात तो कर लेने दीजिए। अरे उनको अपनी बात तो कर लेने दीजिए। हिंदुओं की परिभाषा में इन दलितों को भी ले आइए अपने साथ में। वो टिप्पणी AIMIM पे कर रही है और डिफेंस में BSP दौड़ रही है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर डिबेट में? अरे आसिम वकार साहब है, वो करेंगे अपनी पैरवी। हाँ जी आसिम वकार साहब, हालत तो वो है बेगानी। नहीं, मैं ये अनिला जी से कह रहा हूँ कि इन दलितों को, OBC के लोगों को भी आप हिंदू माने, खाली इनको वोट के रूप में इस्तेमाल ना करें। ये वोट देने की मशीन नहीं है दलित और OBC की। अच्छा नहीं तो फिर आप भी तो कास्ट से ऊपर उठ के बात कीजिए, समाज की बात कीजिए। आप एक पर्टिकुलर वर्ग की बात क्यों कर रहे हैं? तो आप भी तो वही गेम खेल रहे हैं। कोई धर्म के नाम पर खेल रहा है, कोई जाति के नाम पर खेल रहा है, आप भी तो बांट की राजनीति कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, हर जन की बात कीजिए, बहुजन समाज, हर जन की बात कीजिए ना। समाज के लिए आप सिर्फ एक समुदाय विशेष, एक जाति विशेष की बात कर रहे हैं। बट सैयद आसिम वकार, please respond to Anila Singh. Please respond. There seems to be a competition going on tonight on the debate. Who gets more talk time between the BSP and the AIMIM? And this is exactly what is also going to play out in the polls, ladies and gentlemen. Pass comments, But which will jeopardize that. No, that is what none of these political parties understand. The thing is now Brahma हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। No, 1 minute, Anila ji, the thing is, there is nothing constructive about it. 1 minute. There is nothing constructive about Anila ji, let me tell you one thing. There is nothing constructive about caste-based politics. There is nothing constructive about community-driven politics. The politics has to be about the people. But right now the narrative being stretched, it is certain caste combinations and certain community combinations. Everybody is eyeing that only. Even the BJP has played the same game. So then you can't say that this is constructive or destructive. The fact of the matter is that everybody is going to question you because you are the incumbent. And right now they are asking. Here to answer. But yeah, you please. have to stop What you are doing is not answering the question, but you are also taking jibes, personal jibes. You are also taking jibes on Dadi and Sheput. I didn't say anything personal, Your Honor. Okay, go ahead. Owaisi himself. Okay, go ahead. Okay, ladies. Okay, we'll take this debate forward. I've run out of time. I lost track of the time. We've run out of time, so we're going to pause this debate. Uttar Pradesh is going to be the subject matter in the days to come, ladies and gentlemen. Thank you for watching this Friday edition of The Right Stand.